Hey everybody, this is me back again. So you guys must be thinking already why is she all glammed up and why the different setup is going on. So yeah, let me tell you, I'm not in my home. We have come for a staycation kind of a thingy in where should I say, like it's in Gurugram, Gurgaon. So it's a nice property. So I thought why not to shoot a video here as well, since I was kind of getting bored. Not actually, it's just that I had an what should I say, I had this plan ki whenever I'll be going outside for a staycation also, then also I'll make sure that I do shoot at least a single video for all of you. And if I am not that audible, then please bear with me since I forgot to carry my mic. So yeah, and right now I have turned this fan off so that I can be pretty much audible to you guys. So without much blabbering, let's get started now. So why am I here today? Like, why am I shooting this video is that I really was wanting to share my personal experience related to hair. So yeah, in this video I'm gonna tell you how you can stop your hair fall, or what basically I did in order to stop my hair fall. And and yeah, basically it is all about that. So yeah, without much blabbering, let's get started now. So first of all, बहुत ही सिंपल और इजी होने वाला है. आई मीन मैंने ये सच में कभी फील नहीं किया था कि सिर्फ एक दो चीज़ों से ही. सो एंड दिस इज़ वेरी बेसिक ऑल्सो. मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि ऐसा सच मैंने कुछ न्यू बता दिया या कुछ ऐसा बता दिया फॉर विच यू नीड टू बाय सर्टेन प्रोडक्ट्स, या ऐसा कुछ भी नहीं है. दिस इज समथिंग which we have already been known about. So yeah, starting off with the first thing is wash your hair frequently. Yeah, this is something which I have kind of got forgotten कि मुझे हर like every 3 day मुझे wash करना चाहिए or anything of that sort. I literally became lazy and I used to skip some time. I used to, don't get me wrong here and don't make me feel like oh my god she's so creepy and all of that, though I do not look like that at all. So yeah, मतलब मैं थोड़ा सा डिले करती थी. If I feel like कि मेरा कल का ड्यू हो गया, my hair are becoming oily, my scalp is quite oily, I need to wash my hair, तो मैं थोड़ा डिले कर सकती थी, 1-2 दिन बाद कर लूँगी. So this is something which is really a bad thing, and this is something which actually aggravates your hair fall problem to the next level. This is something which you have to make sure कि at least आप twice to thrice भी कर सकते हैं, but twice is sufficient in a week. अगर आप 2 बार अपना head wash कर रहे हैं, so that is something which is really good. एंड डिपेंडिंग ऑन, आप थोड़ा अपने बारे में खुद भी सोचो और खुद भी जस्ट फील इट कि वॉट योर बॉडी नीड्स, वॉट योर हेयर आर एक्चुअली इन नीड ऑफ. अगर आपको लग रहा है आपका स्कैल्प इतना ऑयली नहीं होता, अगर आपका थोड़ा ड्राई स्कैल्प है, सो वंस इन अ वीक ऑल्सो इज़ परफेक्टली फाइन. बट मेरा थोड़ा ऑयली है एंड आई यूज़ टू प्रोक्रेस्टिनेट इट, लाइक कल कर लूँगी, परसों कर लूँगी. तो वो 1-2 दिन में जो ऑयल और एक्यूमुलेट हो जाता था, उसकी वजह से मेरे हेयर फॉलिकल्स थोड़े वीक होने लगे थे, काफ़ी हेयर फॉल होने लगा था. आई रिमेंबर अभी लास्ट वीक ही तक मैं बताती हूँ आपको, लास्ट वीक से ही मेरे बाल काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, टचवुड. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक चीज़ है विच इज़ वेरी बेसिक, बट वी समटाइम्स डू नॉट गेट इट दैट वॉट इज़ हैपनिंग. देयर हैज़ टू बी समथिंग विच वी आर डूइंग इन अ रॉन्ग मैनर और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. सो आई फील ये आप ज़रूर इनकॉर्पोरेट कीजिए अपने रूटीन में कि एटलीस्ट आप ट्वाइस इन अ वीक वॉश करें, विच इज़ रियली गुड. एवरी 4th डे और 3rd डे whenever you feel कि आपके स्कैल्प थोड़ा ऑयली है. लाइक आज मेरा 2nd डे है, yesterday only I washed my hair, so you can see still they are looking quite manageable and beautiful, but still I would say they are kind of looking a slight, that oiliness can be spotted easily. You can see here it is not that oily that I need to wash my hair straight to the like straight with the shampoo and all of that, but it's feel like कि maybe day after tomorrow I'll be in a huge need of washing them properly. So that is something which is really good. Second thing जो मैंने notice की जिसकी वजह से मेरा hair fall problem बहुत बुरा और बहुत ही एक एग्रीवेट हो चुका था, इज़ मैंने कंडीशनर स्किप कर दिया था फ्रॉम लास्ट 1 month. लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट प्रायर टू दिस वीक विच इज़ गोइंग ऑन. जब मेरा एक्चुअली हेयर फॉल का प्रॉब्लम चल रहा था, इज़ आई स्टार्टेड स्किपिंग कंडीशनर अगेन बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न कि मैं लेज़ी हो गई थी. मैंने कहा छोड़ो यार, ठीक है ना, कभी कभी तो चलता है, स्किप कर दो. सो आई वुड से 5-6 टाइम मैंने ऐसा किया व्हेन आई एक्चुअली स्किप्ड कंडीशनर. मैंने कहा कंडीशनर लगाना ही नहीं है, फटाफट शैम्पू करो एंड गेट द हेल आउट ऑफ दिस बाथरूम. सो या दिस इज़ समथिंग विच इज़ रियली अगेन बैड, एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ अगेन आपके बालों को वो डैमेज करेगा, आपके बाल वीक हो जाएंगे. एक वो लश मॉइस्चर
जो भी स्कैल्प में चाहिए होता है, बालों को चाहिए होता है, वो नहीं आएगा एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग कि आपके हेयर फॉल हो रहा है, ब्रेकेज हो रही है. सो दिस इज़ समथिंग विच आई एक्चुअली फेल्ट कि ये भी एक प्रॉब्लम है. और मुझे ये बात कैसे पता लगी कि दीज आर द 2 कॉजेज विच आर एक्चुअली मेकिंग दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम हैपन विच इज़ लाइक हेयर फॉल एंड स्टफ, इज़ जब मैंने ये शुरू कर दिया करना. टू बी ऑनेस्ट, मैंने लास्ट वीक अपना रूटीन सोचा लास्ट 10 डेज़ में कि मैं हर 3rd डे या 4th डे शैम्पू करूँगी व्हेन एवर आई एक्चुअली फील लाइक कि मेरा बालों को ज़रूरत है एक नाइस शैम्पूइंग की, या मेरा स्कैल्प थोड़ा ऑयलिंग है. वो मैंने प्रोक्रेस्टिनेट नहीं किया, नंबर 1. नंबर 2 मैंने कंडीशनर लगाना शुरू कर दिया लाइक आई यूज़ टू डू. वो तो लास्ट 1 मंथ मैंने नहीं किया था. सो दैट इज़ समथिंग which actually allowed me to see the benefit of washing your hair every now and then. I mean twice in a week is good. और दूसरी चीज़ कंडीशनर कभी मत स्किप करें. So these are the 2 main whole soul I would say thing which really helps in maintaining your hair quality, in maintaining your beautiful hair, and in not allowing you to get any hair fall sort of an issue or any breakage sort of an issue. और आप सुंदर लगते हो, स्मार्ट लगते हो. आई मीन हेयर आर समथिंग विच आर रियली आर अ ब्यूटी फॉर गर्ल एंड फॉर a boy too, but still I feel we girl tend to feel really upset whenever we feel like our hair are not in the best position. So let me open my hair and also show you if you feel like कि ऐसा नहीं है. Yesterday only I washed my hair like I told you. You can see how my hair are looking, the kind of shine, the kind of what should I say, I mean the kind of way they are looking right now. It's really good. They are silky, they are voluminous, they are beautiful, they are shiny, you can see. So yeah, this is something which I really was wanting to share. Also 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आप यहाँ पे एड्रेस करना चाहूँगी, जो मुझे लगता है कि अगर आप करेंगे तो बेटर होगा. आप ऑयल मसाज भी इनकॉर्पोरेट कीजिए. जस्ट मेक श्योर एटलीस्ट यू गेट योर ऑयल मसाज डन बाय एनीबडी, और ईदर यू कैन डू इट बाय योर ओन ऑल्सो, बट मेक श्योर एटलीस्ट once in a month you get a nice hot oil massage in winters. Perfect for your hair follicles, perfect for your hair to grow as well. So massage आप ज़रूर लीजिए at least once in a month. Oil massage, any oil, coconut oil, olive oil, whichever you think is the best oil, or whichever sails your boat. अगेन अगर आप हेयर स्पा प्रेफर करते हो तो आप हेयर स्पा वगैरह भी ले लिया करो. हेयर स्पा इज़ रियली गुड. इट रियली हेल्प्स इन मेंटेनिंग द हेयर क्वालिटी ऑफ योर हेयर, and you really feel pampered also. So twice, like once in 2 months you can get it done अगर आपको टाइम लगता है. I mean टाइम निकालो ऑब्वियसली आप अपने बालों के लिए. So once in 2 months आप महीने में 2 महीने में एक बार करा लीजिए, and this is again is going to boost your hair growth, and this is going to provide all that shine to your hair. और तीसरी चीज़ मैं ये बोलूँगी जो मुझे लगता है कि ये भी इम्पॉर्टेंट है, इज़ शैम्पू आप कौन सा यूज़ कर रहे हो. अगर आपको लगता है आपके बालों के अकॉर्डिंग वो शैम्पू नहीं है, देन स्टार्ट सर्चिंग फॉर द शैम्पू विच यू थिंक आर गोइंग टू सूट यू. सो इंग्रेडिएंट लिस्ट थोड़े पढ़ा करो कि कौन सा शैम्पू आपको सूट कर रहा है. सपोज़ अगर आपके ड्राई फ्रिजी हेयर है, इन केस आपको लगता है, तो सी शैम्पू जो थोड़ा माइल्ड हो, जिसके इंग्रेडिएंट्स भी थोड़े से ग्लिसरीन हो, कोकोनट ऑयल हो, मतलब इस टाइप से आप देखो. अगर नहीं भी पता है आपको तो आजकल तो यूट्यूब पे इतने ज़्यादा रिव्यूज़ वगैरह हैं, आप देख सकते हो कि कौन सा शैम्पू आपको यूज़ करेगा, कि कौन सा शैम्पू आपको सूट करेगा. सो या लाइक रिसेंटली मुझे भी एक शैम्पू ऐसा मिला, आई वांट टू एड्रेस इट. इट्स फ्रॉम द लॉरियल डेंसिटी एडवांस. वो बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनके बाल थोड़े थिन होते हैं और हेयर फॉल प्रॉब्लम होता है. तो दैट इज़ द शैम्पू विच आई एम गोइंग टू ऑर्डर वेरी वेरी सून. सो या, तो आप देखो कि कौन सा शैम्पू आपके बालों के लिए है, कौन सा नहीं है. स्टार्ट becoming a bit more cautious about what you are using and what you are applying onto your hair, and रिव्यूज़ वगैरह देखो, उससे भी आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा. सो या, दिस इज़ द वीडियो विच आई वॉज वॉन्टिंग टू मेक, एंड दिस इज़ आई थिंक दिस इज़ ऑल विच आई वॉज वॉन्टिंग टू शेयर विद यू गाइज. ऑल्सो मास्क भी लगा सकते हो आप, अगर आपके पास हेयर स्पा मास्क आते हैं आजकल, ममा अर्थ वगैरह के अच्छे हैं, आर्गन है, अनियन है, बहुत सारे मास्क आते हैं, आप वो भी लगा सकते हो. सिंस अगर आपको बाहर हेयर स्पा के लिए नहीं जाना मतलब ठीक लगता है, या आपको लगता है कि मैं बिज़ी हूँ, तो यू कैन गेट नाइस डब्बा ऑफ हेयर स्पा हेयर क्रीम एंड जस्ट अप्लाई इट, लीव इट फॉर गुड 15-20 मिनट्स एंड रिंस इट ऑफ. तो आप वो भी कर सकते हो.
So yeah, this is it which I was wanting to share. This is how I actually started my hair fall problem, and this is how I become so happy. So yeah, this is it about the video. If you really like this video, then do like and subscribe to my channel. That would really mean a lot to me. And also आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो. मैं इंस्टा अपना वो डाल दूँगी हैंडल डाल दूँगी, दैट इज़ आर ब्यूटी सीक्रेट. तो आप वहाँ फॉलो कीजिए. वहाँ भी मैं काफ़ी अपने फ़ोटोज़ वगैरह डालती हूँ, रील्स वगैरह करती हूँ. सो इन केस अगर आपको मेरी और बदमाशियाँ देखनी है, सो यू कैन एक्चुअली गो देयर एंड फॉलो मी. सो या फॉर नाउ, बाय बाय. लाइक आई ऑलवेज से, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे पॉजिटिव.